everyone, this is part 5 of our series of analyzing past year question paper of DSC 6 Introduction to International Relations. So let us begin. Our question is, explain the major tenets of complex interdependence, a neoliberal approach to the study of international relations. तो हम पहले इस थ्योरी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे. हाँ, ये कहते हैं कि complex interdependence within the framework of the neoliberal approach to the international relations offers a departure from traditionalist realist perspectives by emphasizing interconnectedness, cooperation, and the influence of non-state actors in the global arena. ये अप्रोच डेवलप करी थी रॉबर्ट क्यूहान एंड जोसेफ नाई ने, और ये चैलेंज करती है किसको? प्राइमेसी ऑफ मिलिट्री पावर यानी कि हार्ड पावर एंड द हायरार्कियल इशू प्रायोरिटाइजेशन यानी कि इश्यूज को हायरार्की के बेसिस पे प्रायोरिटाइजेशन देना, यानी कि कौन सा इश्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. एंड इट एडवोकेट्स फॉर अ मोर न्यूआंस अंडरस्टैंडिंग यानी कि मोर डीपर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस डायनामिक्स. पहले हम न्यू लिबरलिज्म इन आईआर के कोर प्रिंसिपल्स देख लेते हैं. तो न्यू लिबरलिज्म प्रोसेस ओरिएंटेड होता है और ये एम्फेसाइज करता है प्रोसेस ऑफ ग्लोबल स्टेट सिस्टम इंक्लूडिंग कॉपरेशन, complex interdependence, interconnectedness, and functional integration to mediate the impacts of an anarchic world order. मतलब जो anarchic world order के negative impacts होते हैं उनको mediate करने में ये help करता है. Next is international mechanisms and regimes. ये कहता है कि अगर international organizations, laws, treaties और norms अच्छे से organized हों, ये international mechanisms अच्छे से developed हों, so they can develop a governance model without the need of a world government. Next is multiplicity of actors, यानी कि states के अलावा और भी बहुत सारे actors होते हैं in the global arena such as multinational corporations, non-governmental organizations, civil societies etc. जो कि influence करते हैं international relations को through multi-layered transnational interactions. Rational actor assumption, ये assume करते हैं कि states rational actors हैं that are seeking to maximize their interests, जो कि जाते हैं extend होते हैं beyond power to include absolute gains from cooperation and interdependence. यानी कि state interest maximization पे ध्यान देती हैं पर खाली power पे ध्यान नहीं देती, वो also include करती हैं cooperation और interdependence को. Next is absolute gains in cooperation, कि स्टेट प्रायोरिटाइज करती हैं एब्सोल्यूट गेन्स ओवर रिलेटिव गेन्स इन कोऑपरेटिव वेंचर्स. नेक्स्ट इज शिफ्टिंग लॉयल्टीज टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस. तो स्टेट्स मे शिफ्ट देयर लॉयल्टी एंड रिसोर्सेज टू ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस इफ दे थिंक दैट दे अलाइन विद देयर इंटरेस्ट्स एंड प्रोवाइड म्यूचुअल बेनिफिट्स. स्टेट्स अपने लॉयल्टी और रिसोर्सेज शिफ्ट कर सकती हैं टुवर्ड्स ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अगर ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रैटेजीज, उनके वैल्यूज अलाइन करते हैं स्टेट्स के इंटरेस्ट के साथ एंड उनको म्यूचुअल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं. न्यू लिबरलिज्म जो कॉपरेशन एम्फेसाइज करता है उसमें कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं सच एज एरियाज ऑफ नो कॉमन इंटरेस्ट, स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, नॉन कंप्लायंस, जो एक्टर्स हैं पॉलिटिकल एरिना में वो कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, एंड फ्री राइडिंग का मतलब अपना इंटरेस्ट देखना and mutual interest को neglect करना. Now we move on to actually understanding कि interdependence theory क्या है और क्या कहती है. So it was introduced in Power and Independence in 1977 and it was further elaborated in After Hegemony. So these are works by both of these philosophers. तो ये theory कहती है कि interdependence जो है वो exist करती है in international relations and it involves mutual dependence where actors are affected by each other's actions and reactions. यानी कि actors global arena में एक दूसरे पे dependent हैं और उनके actions और reactions एक दूसरे को influence करते हैं. Now complex interdependence as conceptualized within the neoliberal approach to the study of international relations encompasses several key tenets that distinguish it from traditional realist perspectives. तो इसके फीचर्स देखेंगे अब हम. नंबर 1 is multi-channel interactions. मतलब खाली स्टेट टू स्टेट आपस में इंटरैक्ट करने के अलावा भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं ऑफ इंटरैक्शंस. ये इंक्लूड करते हैं
गवर्नमेंटल एजेंसीज को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओज को, सिविल सोसाइटीज को, एमएनसीज को और अदर ट्रांसनेशनल एक्टर्स को। तो ये इंटरैक्शंस जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। नेक्स्ट इज इशू इंटरकनेक्टेडनेस। तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहती है कि इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड एंड ऑफन ओवरलैप। तो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स, जैसे हमने पहले पढ़ा था, कहते हैं कि स्टेट्स प्रायोरिटाइज सिक्योरिटी एंड मिलिट्री, बट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस आर्ग्यू करती है कि ऑर्गेनाइजेशंस and states recognize the interplay between security issues, economic interests, social welfare, environmental concerns and other non-traditional security challenges. मतलब कि states and international actors go beyond just the traditional notions of security to encompass the non-traditional notions of security, जो कि ये सब हैं। तो इनकी इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब हुआ कि सॉल्यूशंस टू ग्लोबल प्रॉब्लम्स तभी निकल सकते हैं जब ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ एड्रेस हों। सो दे ऑफन रिक्वायर एड्रेसिंग मल्टीपल इश्यूज साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज। तो ट्रेडिशनल रियलिस्ट व्यू कहते हैं कि सिक्योरिटी और मिलिट्री कंसर्न्स जो हैं वो मैटर करते हैं ओवर अदर इश्यूज, बट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कहती है कि जो इश्यूज होते हैं जो कि इंटरनेशनल एजेंडा को कंसर्न करते हैं, उनमें कोई फिक्स्ड हायरार्की नहीं होती। मतलब कोई इशू कम इम्पोर्टेंट या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल इश्यूज जो हैं उनको इक्वल वेटेज और इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है अलोंग साइड द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये एब्सेंस ऑफ हायरार्की रिफ्लेक्ट करती है द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को in contemporary international relations. Next is dependency and vulnerability. इसका मतलब है कि states mutually dependent होती हैं और vulnerable होती हैं in the international system. इसका मतलब है कि वो solely reliant नहीं होती military power पे अपने objectives achieve करने के लिए, but also dependent होती हैं on economic, technological और social factors. तो ये dependency reduce करती है states के chances and likelihood of resorting to military force and encourage करती है cooperation and negotiation to address shared challenges. Fifth is cooperation as dominant. तो realist perspective emphasize करते हैं कि state conflict करती हैं आपस में और उनके बीच में competition होता है, but complex interdependence कहती है कि cooperation is the main value. It is a dominant characteristic of international relations. जो स्टेट्स हैं दे आर मोर इंक्लाइन टू कॉपरेट, यानी कि दे आर मोर लाइकली टू कॉपरेट टू अचीव म्यूचुअल गोल्स, एड्रेस कॉमन चैलेंजेस एंड रिकॉग्नाइज द बेनिफिट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज मिनिमल रोल ऑफ मिलिट्री पावर। जो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव्स हैं वो हार्ड पावर को रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी कि मिलिट्री फोर्स एक्सेट्रा टू अचीव सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स, बट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस downplays the role of military power in resolving conflicts. Instead ये emphasize करती हैं diplomacy, negotiation और multilateral cooperation को as primary means of conflict resolution and problem solving. Next is functionalism and international institutionalism. तो complex interdependence जो है वो closely associated है with functionalist approach जो हमने पहले पढ़ी है to international relations, जो advocate करती हैं for the creation of international institutions जिससे interdependence form हो और cooperation को facilitate कर सकें। तो जो international institutions होते हैं वो एक platform provide करते हैं for states to negotiate, coordinate policies and resolve disputes peacefully. तो ये reduce करते हैं the risk of conflict and promote करते हैं stability को in the international system. तो conclusion में जो complex interdependence theory है वो एक कॉर्नरस्टोन है न्यू लिबरल अप्रोच टू इंटरनेशनल रिलेशंस का, और ये ऑफर करती है इंसाइट्स इनटू द मल्टीफेसेटेड नेचर ऑफ ग्लोबल इंटरैक्शंस, और ये हाईलाइट करती है द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इश्यूज, द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन एक्सेट्रा। और ये थ्योरी प्रोवाइड करती है अ कंपेलिंग फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस फेसिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन द 21st century. So that was it for part 5 of our series. Please stay tuned for the next videos.
एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, एक्सप्लेनेशंस ढंग से समझ आ रही हैं, सिंपल लग रही हैं, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड ऑल्सो प्लीज कीप वॉचिंग मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी। मैंने इस सीरीज के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, सो यू कैन चेक दैट आउट। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।